All yours, Raj bhai. Over to you. Okay, are you able to hear me clearly? Yeah, loud and clear. Okay, sir. Good evening, friends, to all the members of the Pink City A online group. It's a pleasure and honor to speak. Thanks to Rajesh Bhai, Sudhir Bhai, and all others, dear friends. My name is Raj Bharat. I'm a member of EAA. Hi, Raj. It's entirely by the grace of God, the God I found in the 12 steps mentioned in our program. I'm sane, sober, and free today. As you all know, my home group is Good Shepherds Bombay. My first sponsor, his name is Mr. Suresh Babu. His sponsor is one Mr. Vasu. He's a very, very old timer. And my sponsor in Bombay was Richie Fernandez. God rest his soul in peace. And these are all people who kept me honest and made me do what I was supposed to do and to lead a better life. आज का टॉपिक मेरा हिंदी थोड़ा मतलब साउथ एक्सेंट होगा क्या एक्सेंट होता है मालूम नहीं but I think I can. The problem is sometimes some of the spiritual words, in Hindi, they are very difficult sometimes to remember. So today's topic is a vision for you. अभी ऐसे सोचिए जब भी वो जो ये किताब में 164 पेजेस ही है रिकवरी का. That is all. In the first beginning, there is no page number, but it is in Romans, numerals. That is doctor's opinion. उधर से लेके यहाँ तक इधर एक बेवड़े को नॉट ओनली रिकवरी बताया, हेल्पिंग अदर्स हो गया, तो अभी हम रिकवर हो गया, हम बाकी लोग को मदद कर रहे, उतना ताकत ईश्वर ने दे दिया. अभी हमको एक विजन मतलब जनरली साइट, what you can see. So the distance to which I can see is called the line of sight. जहां तक आप देख सकते हैं. विजन का मतलब है आंखों से देखना नहीं है, सोचने का. That which you can see beyond your eyes can take you. तो हम पीते टाइम पे हमको कुछ विजन नहीं था. विजन था कैसे पिएंगे क्या करेंगे वैसे था. जनरली विजन implies looking or peeping into the future. मतलब इधर ऐसे चालू किया तो कल परसों तरसों एक 100 साल के बाद ऐसे होगा. तो ये विजन बेसिकली क्या होता है, इंसान से पैदा नहीं होता है. जब ये इंसान का सोच के बाहर है उधर ही आता है. बेसिकली दे कम इन द प्रेयर एंड मेडिटेशन टाइम. A vision for your own self, your future of the fellowship, whatever it is. So from a mumbling, stumbling, blind alcoholic to a recovered person who is not only able to help himself, he is able to help other alcoholics achieve sobriety. And God has given him a vision. And everybody of us can have a vision. And there is a shared vision among AA. Although AA has grown in its length and breadth and it has become so multivarious and many platforms of meetings are there, it is still very basically recovery begins when one alcoholic talks to another, sharing his experience, strength, and hope. So in the vision for you, आपने जिसके पास किताब है, अब किताब निकालो तो पेज 151 है. इंग्लिश और हिंदी दोनों, हिंदी में नया आया ट्रांसलेशन, उसका भी पेज नंबर 1 ही है.
तो फर्स्ट पैराग्राफ तुम आपको रिमाइंड करता है कैसे था हमारा. फॉर मोस्ट नॉर्मल फोक्स ड्रिंकिंग मीन्स कन्विविलिटी, कंपेनियनशिप, कलरफुल इमेजिनेशन, मतलब हैप्पी डेज था वो. They were but memories. Never we could recapture the great moment of the past. वो हैप्पी ड्रिंकिंग डेज से कैसे हमारा हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ. The less people tolerated us, the more we withdrew from society and life itself, as we became subject of king alcohol, shivering denizens. Denizens means something like citizens. उधर लिखता है, and we had to wake up to the face the four hideous horsemen: terror, bewilderment, frustration, and despair. Unhappy drinkers who read this will understand. ये क्यों रिमाइंड कर रहा है हमको? एक विजन रखने से पहले इंसान को बहुत हम्बल रहना चाहिए. मतलब स्थिर रह के एक जगह से सोचना पड़ता है, उड़ते उड़ते नहीं. तो विजन फॉर यू इज लाइक अ काइंड ऑफ ही इज पुटिंग ऑल द थिंग्स, रिकैप्चरिंग द एंटायर प्रोग्राम अगेन वंस मोर. So he is telling us how we were, then what happened, how we are now, and how we are supposed to proceed further. God will disclose more and more to you and me as and when is required. So that is the gist. वो है सारांश. अभी नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? जिसके पास डेली रिफ्लेक्शन है वो जनवरी 5th का डेली रिफ्लेक्शन देखा तो ये आएगा. He cannot picture life without alcohol. Someday he'll be unable to imagine life either with or without it. Then he will know loneliness such as few do. He will be at a jumping of place. He will wish for the end. January 5th डेली रिफ्लेक्शन में ये लिखता है, हर एक को किधर से कंप्लीट टोटल एक्सेप्टेंस आया तो इधर से आया. मतलब the contradictory thoughts. If I continue drinking, I'm going to die. If I don't drink, still I will die. If I continue drinking, it will kill me. If I don't drink, I will die. These two compulsive thoughts pushed me to the bottom. That bottom produced total acceptance. The human bottom is nothing but hopelessness, total hopelessness. वो जो बिल डब्ल्यू लिखता है ना उसका रिकवरी का कहानी में, words cannot describe the deep morasses of self-pity which stretched around me. I was overwhelmed. I had met my master. वो बोलता है alcohol was my master. बिल डब्ल्यू उसका कहानी में alcohol was my master, मतलब मास्टर का और मेरा रिश्ता क्या है, मालिक और गुलाम. गुलाम का बहुत इच्छा होगा अच्छा बाप बनने का, अच्छा इंसान बनने का, अच्छा कमाने का, अच्छा जीने का, बहुत इच्छा होगा. बट गुलाम का इच्छे से कुछ नहीं होता है, वो मालिक जो बता रहे उसे ऐसे सुनने का. That is why he has used that word, alcohol was my master. Master and slave. दोस्तों ये किताब में कुछ भी वर्ड है आप डीपली पढ़ा तो ये बहुत, this is one of the most very deeply metaphysical book. मेटाफिजिकल का मतलब क्या है? हमारा और ईश्वर का जो रिश्ते के बारे में लिखता है ना, वो मेटाफिजिकल बोलता है. बिटवीन ये स्पिरिट एंड दी स्पिरिट, उसका रिश्ते के बारे में. और दोस्तों ये सोचिए हमने ये आंखें प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली. ये 12 पैरी क्या तो क्या होता है? मेरा एक आध्यात्मिक जागरण होता है और ईश्वर से मेरा रिश्ता अच्छा बनता है. किधर भी दारू के बारे में कुछ नहीं लिखा है. तो जिसको ऐसे प्रॉब्लम है आध्यात्मिक, वो लोग को ऐसे दारू पीना पड़ता है.
दारू पीना हमारा बीमारी नहीं है। हम क्यों दारू पीते हैं वो एक बीमारी, उसकी वजह से हम पी रहे हैं। इसके लिए बोलता है आध्यात्मिक बीमारी। ठीक है, अगर आध्यात्मिक बीमारी है तो है किधर वो आध्यात्मिक बीमारी। वो लिखता है रिसेंटमेंट was the number one offender. It has destroyed more alcoholics than anything else. From it stem all form of spiritual malady. उधर से उर्पत होता है, वो भंडार है आध्यात्मिक बीमारी का। तो पहले हमने आध्यात्मिक बीमारी क्या है, ये बीमारी क्या है। तो विलियम डंकन सिल्कवर्थ ट्रीट करते टाइम पे 100 लोग अगर इसका इलाज ही नहीं है तो काय के लिए ट्रीटमेंट सेंटर है। जिसको दारू का प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट सेंटर काम करता है। जो दारू पीते हैं और कुछ वजह से और कुछ बीमारी के वजह से, वो बीमारी को इलाज करना इंसान का बात ताकत के बाहर है। वो वी हैव प्लेस्ड आवरसेल्फ बियॉन्ड ह्यूमन एड। So if you see Bill's story, he would have admitted himself in December 11th. I think 1935. So December 11th and December 17th, he will get discharged, 18th. In that 7 days, he will do all those things. If you take Bill's story, page number 13, you can read it. उसमें लिखता है, मेरा दोस्त ने आश्वासन दिया, जब भी मैं ये सब करता हूँ मैं ईश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बन सकता हूँ। आई विल मेक अ गुड रिलेशनशिप, ताकि ये 12 पैरी करना ईश्वर से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। तो विराल वो भटकता हुआ आत्मा बोलता है ना, मतलब कुछ खोया हुआ है। देयर इज अ होल इन द सोल इन द शेप ऑफ अ हायर पावर। उसको अपने पैसे से, सेक्स से, पावर से, पैसे और पोजीशन से, बहुत चीज से उसको भरने को सोचा, नहीं होता था। दैट एम्प्टीनेस, the reason we were drinking like this is because in spite of our in spite of however which we wanted to stop, we could not. Chapter to the agnostic में लिखता है, if when you honestly want to, जब भी आप ईमानदारी से सोचता है छोड़ने का, छूटता नहीं। if when you honestly want to, you find you cannot quit. तो वो आगे लिखता है, if that may be the case, you may be suffering from a illness, only a spiritual experience will conquer. अब देखिए कॉन्कर क्यों वर्ड यूज करने का। दोस्तों, कोई भी बीमारी को कोई लड़ते जीतता नहीं, इलाज करता है। कहीं के लिए कॉन्कर, द वर्ड कॉन्कर इंप्लाइज ए वॉर, ए बैटल, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट। विद इन माई सेल्फ। सो हमने ये बीमारी ऐसे क्यों हुआ, उसका और एक जगह पे बता रहे बिल डब्ल्यू। Sometimes people hurt us seemingly without provocation, but we invariably find that we have taken action based on self that later placed us in a position to be hurt. हमने अतीत में ऐसे निर्णय लिया सेल्फ आधार पर जो हमको चोट पहुंचने का जगह लेके खड़ा किया। आ बैल मुझे मार, ये बीमारी वही कारण है। हमने इस जन्म में किया, पहले जन्म में क्या क्या मालूम नहीं, उधर नहीं जाते हम। बट हमने सही मालूम है, गलत मालूम है, बाकी सब छोड़ देंगे।
सही गलत, जो सही करते जाता है उसका फल सही मिलता है, जो गलत करता है उसका फल गलत ही मिलता है, उसमें हमारा शक कुछ नहीं है। एक्चुअली जो काम एक करते हैं ना, काम का असर क्या होगा सोचने का जरूरत ही नहीं है, काम के अंदर है उसका फल। अगर हमने आम का बीज डाला तो आम का पेड़ आएगा, एप्पल का नहीं आता है। What you sow, so you reap. Okay, now coming back to the vision for you. ये क्या बता रहे हैं? We have shown how we got out from under. हमने कैसे इधर से बाहर आया। ये पेज 150 जो है, सेकंड पैराग्राफ है। Yes, I am willing, but I am not consigned to a life where I shall be stupid, boring, glum, like some righteous people I see. I know I must get along without liquor, but how can I have you sufficient substitute? वो नया नया दारू छोड़ता है, उसको क्या लगता है दारू छोड़ा तो मैं बहुत बड़ा बोर हो जाता हूँ, हंसता नहीं, ये नहीं है, डांस नहीं है, जोक नहीं है, पार्टी नहीं है। दोस्तों सोचो, हम में कौन सा ऐसे पार्टी की हमने दारू पी के, सच बोलो, लास्ट लास्ट में हंसते हंसते अच्छा खाना गिना खा के पार्टी वार्टी करके गाना वाना कुछ नहीं था। एक आधा या क्वार्टर लेके कोने पे बैठ के रो रो के अकेला बैठ के पीते थे। पर हमको दिमाग के अंदर ऐसे लग रहा है जब भी हमने दारू पिया ऐसे, मतलब पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे, नाचना गाना एकदम, मतलब आन बान शान, कुछ नहीं था, बेकार होके पीते थे हम अकेले। और वो भी आधा मन बोल रहे छोड़ दो बोल के, पीने को भी इतना ये नहीं है बट पीना पड़ता था। और सुबह उठा तो कैसे लगता था, नरक था दोस्तों। तो ये नया बंदा बोल रहा है अभी मैं छोड़ दिया तो मेरे को ऐसे, वो जो जीवन क्या होता है, वो जीवन सब हमारा दिमाग में है ऐसे, वह इट्स नॉट फैक्ट। सोच हमारा पूरा सोचता है ऐसे पीते टाइम। आप में किसी ना किसी आंसर करके देखो, लास्ट स्टेज में किसने हैप्पी हैप्पी पिया, हंसते हंसते पिया? किसी ने नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर तू मेरे जैसे अल्कोहलिक है तो लास्ट स्टेजेस में हंसते हंसते, हंसने का कुछ नहीं है भाई, क्या है हंसने का? और कंपनी देने वाला कोई नहीं था, अकेले बैठ के कोने पे पीने का बस। तो ये पूछता है मेरा क्या होगा लाइफ ऐसे, बोर हो जाएगा? वो बोलता है बोर नहीं होता है, तुम्हारा अच्छा सब्स्टिट्यूट मिलेगा। वो क्या सब्स्टिट्यूट है पूछता है। Yes, there is a substitute, and it's vastly more than, it's a fellowship in Alcoholic Anonymous. There you will find release from care, boredom, and worry. Your imagination will be fired. Life will mean something at last. The most satisfactory years of your existence lie ahead. Thus we find the fellowship, and so will you. ये सत्य वाक है दोस्तों, सच में बाप रे। द बेस्ट ईयर्स लाई अहेड ऑफ यू। एल्कोहलिक अनोनिमस में सिर्फ मीटिंग में आके बैठना नहीं है दोस्तों। एल्कोहलिक अनोनिमस में दो है, एक फेलोशिप है, एक रिकवरी है। रिकवरी किताब में है, फेलोशिप बाहर है। फेलोशिप में मेंबर होने के लिए एक ऑनेस्ट विलिंगनेस चाहिए बस। बट किताब में जो लिखा है वो प्रोग्राम करने के लिए, इफ यू आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार है, हाथ काट के देने का तैयार है, तो आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। बता रहे मतलब उतना दूर तैयार होने का। ये बहुत गर्म है, ये बहुत बोरी है, ये बहुत लंबा है, ये बहुत छोटा है, ये पसंद है मेरे को, वो पसंद है। रिकवरी है to live the way you don't want to live, to listen the things that you don't want to listen, and do the things you don't want to do. That's called recovery.
तो ये विजन फॉर यू में क्या लिखता है वो बेसिकली हमने कैसे रिकवर हुआ याद रखो, ताकि विजन फॉर यू है क्या है। ये फेलोशिप में बहुत लोग हमारा जैसे हैं, और गॉड विल शो यू टू वेयर यू शुड बी प्लेस्ड and how you have to be of service. That is the gist. Because if you see our triangle, it says recovery, unity, service. So in the beginning portion of the book, they spoke everything about recovery. Then from the fourth and fifth chapter, they talk about unity, unity of mind, unity of thought, speech, and action, unity with your fellows, and finally unity with the universe. So आप सोबर रह के अच्छा लाइफ जिया तो उसको फल है सर्विस, कुछ दे सकते हैं। हमें अगर आईसीयू में लेट के बाकी लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं? Having recovered from the seemingly hopeless disease, we are in a position, वही हमारा 12 पैरी में बता रहे हैं। Having had a spiritual experience as a result of following these steps, we try to carry this message. This message मतलब if you do these 12 steps, God will show up. तो ये किताब में हर चीज वो उदाहरण कैसे देता है, उन लोग का एक्सपीरियंस से ही देता है। तो बता रहे मैं कैसे इसको करूं, अगर आपको डाउट है तो पेज 153 थर्ड पैराग्राफ में, आवर होप इज दैट व्हेन दिस चिप ऑफ अ बुक इज लॉन्च्ड on the world tide of alcoholism, defeated drinkers will seize upon it and follow its suggestion. आज बहुत लोग किताबें नहीं खरीदते हैं। सच में दोस्तों मैं बहुत शॉक्ड हूँ, कभी कभी मैं देखता हूँ ये, मैं कभी कभी 2-3 साल से मैं आ रहा हूँ सर, ऐसे ऐसे बात करता है। फिर पूछा बुक खरीदा, नहीं सर खरीदने का, बट लिटरेचर पढ़ता हूँ। हमारा किताब है बिग बुक, लिटरेचर नहीं है, वो बेसिक टेक्स्ट है। लिटरेचर मतलब किसी का घर पे गया तो कॉफी टेबल के ऊपर कुछ किताब रहता है, बुक्स रहता है, मैगजीन्स रहता है, वो लाइट रीडिंग के लिए। टेक्स्ट मतलब बेसिक टेक्स्ट मतलब अकेला बैठ के पढ़ने का, ये फर्क है लिटरेचर और टेक्स्ट का। तो इसमें लिखता है our hope is that when the chip of a book is launched on this world tide of alcoholism, defeated drinkers will seize upon it to follow its suggestion. Baraperi. Many, we are sure, will rise to their feet and march on. They will approach still other sick ones, and the fellowship of Alcoholic Anonymous may spring up in each city and hamlet, heavens for those who must find a way out. So क्या लिखता है ये किताब जब भी पब्लिश होने के बाद पढ़ के जो लिखा गया वो पढ़ा, वो उसको करके शराब से मुक्ति मिलके ये जाके दूसरों को कैसे हेल्प करेगा। तो ये होता है क्या, इससे सच है क्या? तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखता है इन द चैप्टर वर्किंग विद अदर्स यू गैदर्ड एन आइडिया ऑफ हाउ वी अप्रोच एंड एड अदर्स टू हेल्थ। एड अदर्स टू हेल्थ, एड का मतलब टू हेल्प, others to health, spiritual, mental, moral health. Suppose now that we, through you, several families have adopted this way of life. You will want to know more how to proceed at this point. Perhaps the best way of treating you is to glimpse of your future, is to describe the growth of our fellowship. Here is a brief account. ये क्या बता रहे हैं, ये विजन के लिए अभी तक जो हुआ इसका एक सारांश बता रहा हूं, बोल रहे हैं। ये सब किताब में क्यों लिखा है?
जब ये किताब लिखा तब बिल डब्ल्यू का खुद 3.5-4 साल हुआ था सोब्राइटी। सब नया है, so they want everything to be fresh in their mind. So when we read, sometimes it will look slightly out of context, but you try to remember the time. So now he is writing, years ago, 1935, one of our member made a journey to a certain western city. ये बिल का कहानी है। 1935 में बिल डब्ल्यू, he goes to which city? 1 minute. He goes to, or for a business venture, he will go to a city. उधर क्या होता है, उसका बिजनेस जैसे वो सोचा वैसे नहीं होता है। वो लोग देवर सपोज टू टेक ओवर अ कंपनी, वो फेल हो जाता है। और बिल डब्ल्यू को जो दोस्त ने लेके गया, उसको उधर ही वो होटल में छोड़ के वो लोग चला जाता है। और बिल डब्ल्यू के पास ज्यादा पैसे नहीं था। वो होटल का नाम है मे फ्लावर, और वो मे फ्लावर होटल लॉबी में खड़ा है। बहुत डिप्रेस हो गया है यार लाइफ में से। तब तक वो 6 महीने का सोबरेटी था उसका। तो जब ही न्यूयॉर्क में था, वो क्या करता था, ऐसे मूड हुआ तो वो चला जाता था, वो उसका रिहैब को चला जाता था और उधर जाके पेशेंट से बात कर रहा था, फिर अच्छा लगता था। ये मेफ्लावर होटल लॉबी में है, उसका मालूम नहीं क्या करने का, और अंदर देख रहे बार है। उसको मालूम है अंदर गया तो खत्म हो जाएगा। दोस्तों उस दिन ये एक पूरा फ्यूचर लाइन में था। तो चर्च डायरेक्टरी बोल के एक होता है उस जमाने पे, मतलब लोकल एरिया का चर्च का सब नंबर होता है। तो जाके एक एक चर्च का फोन करके पूछता है कोई है क्या अल्कोहलिक, उसको मदद करने के लिए आया है, न्यूयॉर्क से बात करता है। तो ऐसे करते करते 9-10 हो गया। लास्ट ट्राई करता है, वो फोन उठाता है एक रेवरेंड, उसका नाम है रेवरेंड टंग्स। उसको पूछता है मैं बिल डब्ल्यू फ्रॉम न्यूयॉर्क, आई हेल्प पीपल विद ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स। वो बता रहे मैं आपको एक नंबर देता हूँ बोल के वो नंबर देता है। वो लेडी का नाम है हेनरिएटा साइबरलिंग, मिसेस हेनरिएटा साइबरलिंग। दोस्तों ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, विजन ऑफ गॉड का मतलब क्या है। वो चेस्ट में पॉन सब मूव करता है ना, ऐसे एक एक अनसीन हैंड है, हम सबको ऐसे इधर 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 मूव करता है। द हैंड ऑफ गॉड बोलते हैं, ये में वो है। अभी तक फेलोशिप नहीं है। जब ये कहानी अभी हो रहे, वो टाइम पे बिल डब्ल्यू 6 महीने था सोबर। हेनराइटा साइबरलिंक को फोन करता है और बता रहा है माय नेम इज बिल डब्ल्यू, आई फिक्स ड्रंक्स, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। औरत बोलते यूर अ मन्ना फ्रॉम हेवन। मन्ना फ्रॉम हेवन का मतलब गिफ्ट फ्रॉम हेवन। बोलते मेरे का एक फ्रेंड है डॉक्टर बॉब बोल के, मैं उसको फोन करता हूँ, आप आके मिलिए। सो उसका एन को फोन करता है बिल डॉक्टर बॉब को वाइफ को। तो अगले दिन वो लोग मिलने को प्लान करते हैं आधा घंटे के लिए हेनराइटा का साइबरलिंक का घर पे। एंड दे टॉक फॉर नियरली 6-7 आवर्स। उसके बाद 3 महीने बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर बॉब का घर पे ही है। डॉक्टर बॉब सर्जन है और वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाता था, बट उसका आध्यात्मिक जागरण कुछ नहीं हुआ था कि वो स्टेप्स नहीं किया, बिल डब्ल्यू स्टेप्स किया, इतना ही फर्क है। वो सब स्टेप्स करता है, सिर्फ वो जो अमेंड्स नहीं करता है, ताकि वो सर्जन है जाके सच नहीं बोल सकता है मैं ऐसे सर्जरी किया आपको वैसे किया। फिर अचानक एक दिन रात को जाके सबको करके घर आता है। वो तो जून 10 है, वो फाउंडर्स डे बताता है। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, विजन का मतलब है हमको मालूम नहीं होता है, एक बार पीछे देखा तो ही मालूम पड़ता है कैसे कैसे हम पार करके आया, क्यों आया। बहुत बड़ा पजल जैसे, जिक्सा पजल जैसे।
So every recovered member हाथ में है ऐसे बिल डब्ल्यू जैसे डॉक्टर बॉब को मिला, उधर से क्या हुआ, फेलोशिप पैदा हुआ। अल्कोहलिक एनोनिमस आज बात करते ना आप, मैं आज जूम में आपसे बात करता हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, पर हम सब एक ही चीज के ऊपर बात करते हैं, ये किताब है। इसलिए किताब में पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो छोड़ा तो हमको और कुछ नहीं है रिकवरी का। The vision for you is something that you and I cannot see. But in your prayer and meditation, you will get a glimpse of that. दोस्तों, मैंने लाइफ में कसम से बात करता हूँ, मैं एक दूसरा लाइन में हूँ, क्रिएटिव लाइन में हूँ, फिल्मी लाइन में। तो मेरे को ऐसे आइडिया भी नहीं था मैं जाके स्पॉन्सरशिप करूं या किताब ऐसे पढ़ूं, ऐसे वो सब कुछ नहीं था। मेरे को ये नहीं था एक दिन पढ़ के आपको मैं आके स्पीकर बनूं, ये बनूं, वो सब कुछ नहीं था। मेरा जान बचाने के लिए पढ़ा मैंने। और पहले बहुत साल तक मैंने स्पॉन्सरशिप नहीं किया मैंने, मतलब ये मैं गेस्ट जैसे आता था, जाता था, ज्यादा कुछ नहीं करता था। बिकॉज आई वॉज डाइवर्स्ड, आई वॉज स्टेइंग अलोन इन बॉम्बे, आई हैड अ नाइस फ्लैट, तो कोई भी मेरा घर आके जा सकते कभी भी ऐसे। तो वैसे चालू हुआ था कि किसी को नंबर दिया, वो आया, कुछ डाउट चालू किया, फिर पूछा आप स्पॉन्सर बनोगी, तो मैंने सिर्फ इतना ही किया। वो किताब पढ़ने के लिए बताया, किताब में एक्सप्लेन करते आया, ऐसे करते करते वो स्टेप्स करके वो अच्छा हो गया, ऐसे वैसे। दोस्तों, इट्स वेरी टचिंग फॉर मी टू टेल, all my sponsors, they are doing very well. I mean, like, I don't know, maybe 20, 30, and they have got 20, 30, God knows. What I'm trying to say is, I never thought, like, life will turn out like this. And today in Alcoholic Anonymous, I've got friends all over India, not only India, abroad. It has shaped every part of my life, professionally, personally, financially, mentally, morally, physically, all those things. Okay, coming back to the point, a vision for you. तो विजन फॉर यू अभी तक क्या क्या मैंने बताया, पहले ओपनिंग बताया, हमने पहले कैसे सोचा था, दारू पीने का टाइम पे हम हैप्पी था, ये था, कुछ नहीं था, बहुत दुख होके पीता था। और देन ही सेज हाउ वी रिकवर्ड एंड व्हाट वी शुड डू आफ्टर रिकवरी। एंड इट सेज यू देयर विल बी बिग मीनिंग। बिल डब्ल्यू का अगर डॉक्टर बॉब को मिला नहीं है तो क्या मीनिंग होता था उसका रिकवरी। वो दोनों मिलके फिर उसका नाम है स्नाइडर, आई थिंक सो, फर्स्ट ये फॉर ये बॉब डी, उसके बाद एक मेंबर है, उसके बाद आते 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 द फेलोशिप ग्रोस एंड ग्रोस एंड ग्रोस। बिल डब्ल्यू को नहीं था विजन ऐसे हो सकता है बोल के, हॉस्पिटल में जब ही लेटा था वो, उसका एक सडनली सोच आया, अगर ये जाके बाकी लोग को कैसे ये रिकवर हुआ बताया तो। ये हर आध्यात्मिक कार्यक्रम में है, भले बुद्धिज्म ले लो, हिंदुज्म ले लो, अगर तुमको कुछ अच्छा ईश्वर का कृपा मिला तो जाके दूसरों को बताने का, कैसे क्या क्या करने का, कैसे होने का, वो है ये। So the topic vision for you is not separate chapter from other things. वो सारांश है हमारा। जैसे एक ये बीमारी से बाहर आके अच्छा होके हम बाकी लोग को मदद करते करते जाता है। बाकी लोग को मदद करना एक एक बहुत बड़ा अंग है हमारा रिकवरी में। हम रिकवर होना एक अंग है, उससे अगर डॉक्टर पढ़ के किसी को इलाज नहीं किया तो फायदा क्या है। तो ईश्वर ने तुमको ये ताकत दे रहे जो कोई साइकियाट्रिस्ट का या डॉक्टर को नहीं देते है। मेरा स्पॉन्सर्स बहुत लोग हैं दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री से है, लिरिक राइटर है, ये है वो है, और कॉर्पोरेट लोग है, हर तरीके से लोग है, मेन है, वुमेन है।
मैं क्यों बता रहा हूं? वो टाइम पे ईश्वर ने हमको क्या, हमको किधर से वो ताकत आता है मालूम नहीं है। सामने वाला वो सुनता है, और जो भी हम मुंह से निकलता है वो आसान से पट नहीं निकलता है, हमको बहुत सोच समझ के करता है। सो बिल डब्ल्यू वो जो वो ये जाता है, वो जो डॉक्टर बॉब का वो गांव है, वो उसका नाम है, अच्छा जगह यार वो। तो वो उधर जाता है, उधर जाके उसको मिलता है। अगर उसको नहीं मिला समझो, ये सब नहीं होता था। अब उसको क्यों मिला, वो इसका बिजनेस धंधा खराब हो गया। सोचो उसको कैसे लगेगा, ये भी मतलब वो प्रोग्राम सब करके वो अच्छा है, वो 6 महीने सोबर है, ईश्वर ने कुछ अच्छा जगह लेके जा रहे हैं बोल के ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास करके वो गया उधर, और उधर बिजनेस फेल हुआ। वो दारू नहीं पिया, सोचा मैं दूसरा अल्कोहलिक को ढूंढूं, और वो था डॉक्टर बॉब। अगर बिल डब्ल्यू को मालूम होगा ये सब नहीं है ना। ओहायो उसका जगह का नाम है, ओहायो, सॉरी, OHIO, डॉक्टर बॉब का जगह। और डॉक्टर बॉब और बिल मिलके दे ब्रिंग दिस फेलोशिप, जो अभी आज जो किताब से मैं पढ़ रहा हूँ, वो किताब आया, coming back to vision for you. So what is this vision telling is that every alcoholic in Alcoholic Anonymous who has had a vital spiritual experience as a result of these 12 steps, who is also a sponsee and who is also a sponsor, he is a very vital part of a huge structure where recovery begins when one alcoholic talks to another. तो दोस्तों आजकल क्या है, बहुत आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप, मतलब ये किताब को बहुत बीच में बहुत कम होता था पढ़ना, किताब के बारे में बात करना बहुत, मतलब जिस दिन हमने ये सब भूल गया समझो, हमारा कुछ ये नहीं है, वो स्थिर प्लेटफॉर्म नहीं है रिकवर होने का। ताकि ये मैं के वो जो मीटिंग में सुन के रिकवर नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग उसका हिसाब से बात करेगा, हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से सच होगा। ये में बहुत लोग आता है जिसका हमारे जैसे पीने का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड ड्रिंकर होगा, तो आजकल सबको ये मालूम है, थोड़ा ज्यादा पिया तो भी ये मीटिंग में लेके आ जाता है। हमने बोलते हैं सिर्फ आपका नाम बोलो अल्कोहलिक बोल के बैठ जाओ बोल के, वो बोलता है हम ताली हीली बजाता है, सही जगह पे सही वक्त पे आ गया बोल के, पर सही इंसान आया तो मालूम नहीं होता है ना। तो वो रह के 2-3 साल सोबर रहेगा, फिर बताएगा मैं 2-3 साल हो गया दोस्तों, मैं किताब नहीं पढ़ा, मैं स्टेप्स नहीं किया, फिर भी मैं सोबर हूँ। अभी जो मेरे जैसे बंदा बैठा है वो सोचेगा फिर मैं काय के लिए करूं। इसके बारे में भी पेज नंबर 19, 20, 21 में किताब में लिखा है, बिल डब्ल्यू लिखा है। तो हमको कैसे बिल डब्ल्यू ही विल डिफरेंशिएट, he will call us the real alcoholics, the alcoholics of the hopeless variety, hopeless variety or the real alcoholics. So if we are a recovered alcoholic, what is the vision, मतलब अभी अभी क्या है, अभी हमको लगता है यार अभी अभी मैं ठीक हुआ हूँ, घर पे इतना प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करना पड़ता है मेरे को, और अभी मैं घर में ध्यान नहीं दिया, पूरा जाके बाहर ये सब किया तो मेरे घर पे चिल्लाएगा वो लोग, करेक्ट है वो सब। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हमारा प्रॉब्लम को हमने जितना ज्यादा टैकल करता है उतना बड़ा होते जा रहे हैं। जाके बाकी लोग का प्रॉब्लम थोड़ा कम करो, तुम्हारा प्रॉब्लम सब गायब हो जाता है। दोस्तों ये जोक नहीं है, प्लीज, सच बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ बात करूंगा मैं, सब अजीब लगेगा, बट सत्य वाक्य सत्य है, मतलब किताब में कुछ जो लिखा है
बहुत बार मेरा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, अभी ये मतलब दिस लास्ट 24 years आई फेस सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स, बट वर्किंग विथ अदर्स का टाइम पे क्या होता है हमारा एक चीज बता रहा हूँ अभी, आप मेरा स्पॉन्सर से बात कर सकते हैं आप। वो उसको एक दिन बताया, आज भी वो बता रहे, मैं बताया जब भी एक एक सफरिंग अल्कोहलिक को मदद करना टॉप प्रायोरिटी रखो, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा फूड शेल्टर क्लॉथिंग बच्चे लोग है, वो सबके बारे में चिंता मत करो, गॉड विल टेक केयर। दैट इज ए फैक्ट, 100% फैक्ट। So what is the vision for you is sometimes you will not be able to see ahead. Sometimes there will be confusion. Sometimes there will be doubt. Sometimes there will be worry, anxiety, irritation, anger. सब आने दो। ये मैं कभी कभी मैं सुनता हूँ दोस्तों, आज भी मेरे को गुस्सा आता है, मैं कोशिश करता हूँ कंट्रोल करने का। अरे हम कोशिश नहीं करने का भाई, हम कुछ कोशिश नहीं करने का। स्टेप 6 में बोलते हैं एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव दीज डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स। अगर बैठ के मैं मेरे को खुद ठीक कर सकता हूं तो क्या ईश्वर का के लिए है ना। तो ये प्रोग्राम में हमने एक कदम रखा तो 90 कदम ईश्वर रखता है, हम एक ही रख सकते हैं, बाकी वो करता है। So what you need to understand is this whole program, we are not doing anything. We allow God to help us and God will help us. Through us, God will help other people also. बीच में कुछ काम के लिए मैं दुबई गया था, उधर आई वाज देयर फॉर 3 months। उधर मेरा बचपन का एक दोस्त है, मालूम पड़ा वो ड्रग का एडिक्ट हो गया बोल के। तो आई हैड गॉन टू ओमान फॉर 4-5 days, मेरे साथ आया, किताब भी लेके आया। दोस्तों यू विल नॉट बिलीव, 5-6 दिन बैठ के इतना किया डे एंड नाइट, उसका 8 साल कंप्लीट हो गया। बहुत लोग ऐसे उधर ही है, हमारा जयपुर में ही है। मैं क्यों बता रहा हूँ एक स्पॉन्सर का मतलब लाइफ टाइम कुछ नहीं करने का, बहुत हुआ तो 2-3 महीने लगता है। वो किताब पढ़ के उसको समझाने के लिए हर चीज, ताकि वही उसका बेस है, कल उसका स्पॉन्सर पूछा तो वो जवाब दे सकता है। और 5 पैर 6th स्टेप करने के बाद खुद वो जाके 1 साल हो जाएगा, वो दूसरा एक बंदे को हेल्प करना चालू करेगा। Because the most vital part of our AA program is recovery. recover होना चाहिए। ये आजकल नया नया सुनता हूँ मैं, इन एंड आउट हो रहा हूँ मैं, क्या इन एंड आउट समझ में नहीं आता है। इधर यू वांट टू रिकवर और यू डोंट वांट टू रिकवर, बस उतना ही है। And coming to AA meeting every day and sitting there without deciding what you want to do is just a waste of time. Basic honesty होना चाहिए। और अगर करने का तो किताब लिखा है कैसे करने का बोल के। यू विल हैव टू टेक अ स्पॉन्सर, जो है वो जो प्रोग्राम में तुमसे ज्यादा टाइम है रिकवर होके, उससे सीखना पड़ता है। सुनने को सीखो, सीखने को सुनो, ताकि किसी और से कुछ सुनने के लिए ईगो कम होता है। और दूसरा तरीका नहीं है, देयर इज नो अदर वे। एक्चुअली ये एक टाइप का गुरु परंपरा जैसे बोल सकता है, ताकि वो जो बता रहे वो सुनने का। दोस्तों मैं बहुत सुना, दोस्तों बहुत सुनना पड़ा मेरे को, और वो बहुत हेल्प हुआ। Okay, coming back to this chapter now. So what we have understood in the vision for you is, first they say how we were, then what happened, how we recovered. Now what we are going to do with our recovery. अगर recover हो गया, हर मीटिंग में जाके ईश्वर के कृपा से सुंदर संगठन से आज मैं दारू से 2 रूम बोल के घर जाने का नहीं है। दोस्तों मैं कभी कभी 8 घंटे 10 घंटा बैठता था दिन में, बहुत टाइम लगता था। कभी कभी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम सब साइड पे रखना पड़ता था। सडनली फोन आएगा,
स्पॉन्सेस का, घर पे कुछ छोटा झगड़ा हो जाएगा तो अपसेट हो जाएगा। बहुत कमिटमेंट चाहिए पहले। तो क्या बता रहे हैं, हमारा सब्स्टिट्यूट क्या है लाइफ में? तो टेक अप दिस लाइफ, गो हेल्प अदर्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर प्रोग्राम। ट्राई टू कैरी दिस मैसेज टू द सफरिंग अल्कोहलिक्स। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दो। हम किसी को ये नहीं करते। अगर उसका इच्छा है तो टाइम बताए तो वो टाइम पे आने का, 5 मिनट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सब बंद करके सुनने पड़ेगा। डाउट जो भी है पूछ सकता है वो, और हॉनेस्ट रहने का। तो इट्स लाइक अ कैंडल। एक कैंडल लाइट किया तो एक कैंडल का लाइट से 1000 कैंडल लाइट कर सकते हैं आप। ताकि आपने ये 13th डे है, आप 13 डेज सब पढ़ के, यू फर्स्ट लिसन टू डॉक्टर्स ओपिनियन। डॉक्टर्स ओपिनियन में डॉक्टर क्या बता रहे हैं? मैं जो इलाज नहीं कर सकता हूँ वो ये बेवड़ा आके कर रहे हैं। इमेजिन करो वो डॉक्टर का इज्जत क्या होगा। वो किताब में उसका सिग्नेचर डाला और उसका नाम भी डाला सेकंड एडिशन से। अगर बिल डब्ल्यू स्लिप हो गया तो वो खत्म हुआ डॉक्टर, बस कैरियर। पर क्या विश्वास था बिल डब्ल्यू के ऊपर, ताकि वो बिल डब्ल्यू को देख चुका है। उन्होंने बताया ये पागल हो जाएगा या मरेगा, दोनों नहीं हुआ। ये अच्छा होके डॉक्टर अगर के पता रहे मेरे जैसे कुछ लोग हैं, मैं जाके उनसे बात करूं क्या? ताकि विलियम डंकन सिलकोर्थ डॉक्टर को मालूम है, वो छोटा कंपाउंडर है, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। एमडी है वो। और सबसे बड़ा न्यूयॉर्क में ड्रग एंड अल्कोहल रिहैबिलिटेशन सेंटर को डायरेक्टर है वो। 100 लोग आया तो 90 लोग ठीक होता है, 10 लोग ठीक नहीं होता है, बार बार आके पी के मरता है। वो 10 लोग को रखा था होपलेस चैरिटी, और उसको मालूम था वो लोग क्यों पी रहे हैं। और वो आइडेंटिफाई किया, बिकॉज दे आर माल एडजस्टेड टू लाइफ। माल एडजस्टेड टू लाइफ का मतलब ये सोसाइटी का जो डिमांड है उसको फेस नहीं कर सकता है, इमेच्योर पीपल है। And when they don't drink, they become restless, irritable, and discontent. And they must have a complete psychic change. And that psychic change doctors cannot bring about. And that is why he allowed Bill W. बिल डब्ल्यू जब ये रिकवर हुआ उसको हॉस्पिटल में, उसको ही मालूम नहीं था क्या कर रहे हैं बोल के। कुछ लिख रहे बैठ के, जो भी करने करने दो। और उसी हॉस्पिटल में उसको बदला होना होता है। और वो 6 महीने के अंदर बहुत बार आके बाकी लोग से बात करता है। वो डॉक्टर ने उसका ओपिनियन में ही लिखता है, अगर मैं इसके बारे में कुछ बात करूं तो मेरा खुद का एक अनुभव बता रहा हूं बोल के बताएगा 2 कहानी। दोस्तों क्यों मैं बता रहा हूं, ये विजन मालूम पड़ने से पहले हमारा हाथ में क्या है, ये किताब क्या है, हमारा प्रोग्राम क्या है, वो थोड़ा सोचने का। कुछ भी आध्यात्मिक कार्यक्रम आध्यात्मिक बताए तो बहुत स्ट्रेस होने का जरूरत नहीं है। सही गलत है इसके अंदर ही है आध्यात्मिक, बस उतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो सबसे बड़ा हमारा कॉन्शियस है। गलत किया तो हमको खुद मालूम पड़ता है, उससे हमने एस्केप नहीं कर सकते। तो ये प्रोग्राम बहुत गहरा है, ये सिर्फ दारू के बारे में नहीं है। मैं आज मीटिंग गया इसके लिए दारू नहीं पीऊंगा, वो नहीं है। दोस्तों संत बनना आसान है दोस्तों, इंसान बनना बहुत मुश्किल है। संत का बहुत लाइसेंस है, उसका फैमिली नहीं है, ये नहीं है, मोबाइल बिल भरने का, टैक्स भरने का, ये करने का कुछ नहीं है। इंसान जीने का तकलीफ है दोस्तों। बीवी हर दिन ऐसे नहीं होती है, एक दिन गुस्सा आ जाती है। बच्चे लोग वैसे नहीं है, जिधर हम काम कर रहे हैं धंधा करते हैं वो वैसे नहीं है। लाइफ ही है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी। एक सिंपल चीज बताऊं आपको,
समझो आप 5वां माला में घर है, लिफ्ट नहीं है, डेली 5 माला आप वॉक करके जाने का ऊपर, डेली हाथ में एक 10 किलो का वजन रखा है, आप लेके जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन आपका घर पे झगड़ा हुआ, नहीं तो बैंक बैलेंस कम हुआ, या तबीयत खराब हुआ, या बिजनेस में कुछ ये हुआ, प्रॉब्लम हुआ, आपका जो 10 किलो 100 किलो जैसे लगेगा, भारी लगेगा। वही आपका बीवी प्यार से बात किया, बिजनेस में बहुत बड़ा मुनाफा आया, हेल्थ अच्छा है, तो वो 10 किलो 1 किलो जैसे लगेगा, कूद कूद के वॉक जंप करके जाएंगे आप। तो हेल्थ है, फैमिली है, वाइफ अफेक्शन है, बच्चे लोग का अफेक्शन है, सब एवरी डे विल नॉट बी द सेम, मंडे टू संडे एक ही नहीं होता है। तो बहुत अस्थिर दुनिया है। क्या अस्थिर दुनिया में हमको कुछ स्थिर चीज पकड़ के ही जी सकते हैं, स्थिर चीज हमारा अंदर है। Deep within every man, woman, and child, there is a belief of God. If you take the chapter to the agnostic, उसमें क्या लिखता है? The main purpose of this book is to enable you find your higher power. एक किताब है, आपको एक ईश्वर के पास लेके जाता है, मतलब जीपीएस जैसे, हमारा गाड़ी में जीपीएस है ना, किधर जाने का बोल के कैलाश ईश्वर को मिलने का डालो, और जो रूट बता रहे जाओ बस। Your destination is 30 meters ahead on the left hand side. भले तुम विश्वास किया नहीं किया, God will show up. So the 13th day today, you are coming to the vision for you. That means you now recap kiya to the doctor's opinion, you understood what this disease is. Then you read Bill's story, how he recovered by doing the steps suggested by the Oxford group. There is more about alcoholism. And there is a solution. 10 solution नहीं है, एक ही solution है, वो भी in the form of spiritual way. How it works, ये कैसे काम करते भाई, वो बता रहे। ये आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक की चीज कैसे काम करता है। इनटू एक्शन, क्या करना पड़ता है। वर्किंग विथ अदर्स। So ऐसे ऐसे जाते जाते go to the employees, to wives, etc., etc., etc. Finally, comes to the vision for you. So when we are reading this, basically every AA should have practically gone through certain things in his life. एक इसका it's one of the most beautiful chapter. It is basically written by Dr. Bob. तो अभी एक किताब में आप a vision for you, you come to that last page. Last page में he says, still you may say, but I will not have the benefit of contact with you who have written this book. We cannot be sure. God will determine that. So you must remember that your real reliance is always upon him. He will show you how to create the fellowship you crave. How to create the fellowship you crave. दो fellowship है दोस्तों. We come in the spirit of fellowship. Then there is a fellowship of the spirit. In the beginning, we all come to with the spirit of the fellowship. Then we enter the fellowship of the spirit. We have entered the world. वो लिखता है ना इसमें, into action में. We have entered the world of the spirits. ये सब जोक नहीं है.
कुछ भी किताब में ऐसे लिखा तो बाकी लोग पढ़ा तो छोड़ेगा नहीं हमको। कह रहे यू एंटर द वर्ल्ड ऑफ द स्पिरिट्स, क्या जोक कर रहे हैं क्या आप लोग? ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैन कॉन्कर, वी हैव प्लेस्ड आवरसेल्फ बियॉन्ड ह्यूमन एड, बाकी लोग मदद नहीं कर सकते। और पीना एक ऐसे पीना एक आध्यात्मिक बीमारी है। This book has not been questioned, friends. It has been read by some of the greatest theologians, metaphysicists, extreme thinkers, social workers, psychologists, psychiatrists. क्वेश्चन नहीं कर सकते, ताकि जो आध्यात्मिक है वो सच रहता है दोस्तों। फिजिक्स है, जो भी फिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई होता है वो फिजिक्स है। फिजिकल वर्ल्ड के बाहर है बट स्टिल इट इज अप्लीकेबल, दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। Gravity is coming under physics, but what makes the gravity is metaphysics. Gravity obeys a law. Who created law? That is metaphysics. So ये बहुत हमारा प्रोग्राम है, बहुत गहरा है, बहुत डीप है। बट वो कैसे है? एक फर्स्ट डे पढ़ा तो ही वो तुमको मदद करेगा, हजार हजार दिन के बाद पढ़ा तो भी मदद करेगा। जितना गहरा तुम जाके पढ़ेगा उतना गहरा तुमको समझाएगा। You can grow with the book as it is, as it is, as it is. So he says, he will show you how to create the fellowship you crave. मतलब you are going to create a fellowship you crave. Fellowship मतलब नया कुछ नहीं, सेम यही है। अभी पिंक सिटी में आप लोग चालू किया, आपको दिखा और दो लोग चालू करेगा, वैसे ही करेगा, वैसे ही करेगा। सब लोग बिल एंड बॉब नहीं बनने का। जो भी आप एक एक ये मेंबर है जो इतना इंपॉर्टेंट है बिल और बॉब जैसे। There is nobody important, there's nobody less important in here. We are all children of God. Our book is meant to be suggestive only. We realize we know only a little. God will constantly disclose more to you and us. Disclose more to you and us. Whatever God discloses, those that is called a vision. दृष्टिकोण बोलते हैं. That is God's. That is something beyond your imagination. Ask him in your morning meditation what you can do each day for the man who is still sick. The answers will come if your own house is in order. But obviously, you cannot transmit something you haven't got. That means keep your house in order. Do your 10 step regularly. Whenever there is resentment, remove that. Don't even keep a little bit also. Resentment is the number one offender. Page number 66, first paragraph में लिखता है, when harboring such feelings, we shut ourselves from the sunlight of the spirit. The insanity of drink returns. We go and drink with us. To drink is to die. वो रिजनमेंट है क्षत्रिय जैसे, वो ईश्वर का कृपा आ रहा है ना सनलाइट जैसे, वो कृपा को बंद कर देता है वो क्षत्रिय। रिजनमेंट एक क्षत्रिय जैसे, वो क्षत्रिय पकड़ा तो जाके पी के मरने का। रिकवरी है वो क्षत्रिय को बंद करके नीचे रखने का। क्षत्रिय को फेंक नहीं सकते, हाथ में ही होता है। But to keep yourself reminded of that, that is 10th step. That is every day. Before retiring, बोलते हैं, before you go to sleep, was I very angry with my wife, with my children? Am I very worried? दोस्तों, fear आया तो एक ही prayer है. God, please remove my fear of so and so, and direct my attention to what you would have me be. At once we outgrow fear. जो बता गया वो डेली, वो जो सुबह रात को ब्रश करता है ना, वैसे प्रेयर का मतलब ऐसे बंडल धो के ध्यान में बैठ के ऐसे नहीं करने का। आराम से लेट के करो, कुछ गलत नहीं है। क्या किया मैंने बच्चे लोग से? अच्छा बात किया क्या? कुछ इरिटेशन था क्या?
कुछ वरी कर रहे हैं क्या, कुछ बॉदर कर रहे हैं क्या, रात को ही उसको क्लियर कर दो। वो उसको हाथ में रख के सो मत। कभी कभी 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, उसके ऊपर थोड़ा प्रे किया तो चला जाता है, वो हल्का हो जाता है। हल्का होने के बाद ही सोने का। So that is what you have learnt. So that is what he's telling you. He's reminding you again. The answers will come if your own house is in order. But obviously, you cannot transmit something you haven't got. See to it your relationship with him is right. ईश्वर के साथ रिलेशनशिप करेक्ट रखो। एक छोटा सा रिसेंटमेंट है, वो हमारा और ईश्वर का कट कर देता है। वो रिसेंटमेंट ही हमारा आध्यात्मिक बीमारी है। बाकी लोगों को कुछ नहीं होता है, हमको इतना दुख हो जाता है, इतना अकेलापन हो जाता है, इतना खाली खोखला जैसे हो जाता है हम, उसकी वजह से दारू पीना पड़ता है। इतना दर्द होता है दोस्तों, मालूम है अंदर से मरेंगे बोल के फिर भी पीते हैं। आज तो नहीं मरेंगे ना, पीते हैं। अब क्यों ऐसे पीते हैं? तो इसका कांटेक्ट कट हो गया रिसेंटमेंट की वजह से। तो हमारा और ईश्वर का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों को मालूम नहीं है, मेरे जैसे बेवड़े को। ताकि जब से वो रिलेशनशिप बराबर हुआ, मेरा पीना बंद हो गया। मैं मालूम भी नहीं था इसका इसका कनेक्शन है बोल के। तो बहुत अजीब है, सच में बोलता हूँ। और मेरा गाड़ी में कुछ इंजन का ट्रबल है, तो बाजू वाला ऑटो को रियर में मेरा ठीक करो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो कैसे? कौन कौन विश्वास करेगा? दोस्तों, ये विश्वास करने का टाइम कैसे आता है? जब इंसान का बहुत खराब टाइम हो गया, तो वो तोता से जी जाके वो भविष्य पूछता है। तोता तोता वो जो फुटपाथ में होता है ना, उसको 10 रुपया दिया तो तुम्हारा भविष्य बताएगा। मालूम है हमको वो क्या बताएगा? मतलब हमारा टाइम खराब इतना हो गया, कुछ भी सुनने को तैयार है। वो स्थिति आने का दोस्त तभी ये प्रोग्राम करेगा इंसान। जो भी आप बोलेगा मैं करता हूँ सर, हाँ जी करता हूँ सर, जी जी जी। नहीं तो हमारा बीमारी मैं सब जानता हूँ बीमारी है। जो सब जानता है उसको क्या सिखा सकते हैं? तो see to that your relationship with him is right, and great events will come to pass for you and countless others. Great event will come to pass. Great event का मतलब एक संभव है। ऐसे अच्छा अच्छा बड़ा संभव आएगा। ये क्या मतलब? सोचा तो ये पेवड़े को बताया तो क्या मतलब? ये सच है दोस्तों। अभी 24 इयर्स में सब देख चुका हूँ मैं लाइफ में। दिस इज द ग्रेट फैक्ट फॉर अस। फैक्ट का मतलब सच है। Abandon yourself to God as you understood God. Admit your faults to Him and your fellows. Clear away the wreckage of your past. Wreckage of the past मतलब ये नया बिल्डिंग करने के लिए पुराना तोड़ना पड़ता है। तोड़ के जो तोड़ फोड़ करके रखा है उधर का उधर ही रख के उसके ऊपर नहीं बना सकते है। वो सब क्लियर करने का, साफ करना पड़ता है। जो अंदर कैसे कितना रिश्ता हमने तोड़ फोड़ करके रखा है, कितना वचन दिया उसको तोड़ फोड़ किया, कितना वादा किया, क्या क्या किया हमने, खुद को चीट किया, बाकी लोग, वो सब फोड़ फोड़ करके रखा है। क्लियरिंग द wreckage of the past is your fifth step. That's very important. Give freely of what you find and join us. We shall be with you in the fellowship of the Spirit. Not the spirit of the fellowship, the fellowship of the Spirit. And you will surely meet some of us as you trudge the road of happy destiny. May God bless you and keep you until then. Thank you, दोस्तों। ये है आपका vision for you, because you have been doing from day one. That is, you have gone through everything. This is the gist of it. In the sense, the vision for you is basically each AA member's journey. And that is what it is. It is सारांश है डॉक्टर बॉब का, जो वहां तक जो हुआ उसका कहानी का।
अभी वो लोग सोच भी नहीं कर सकते मैं इधर से बैठ के जूम में हम मीटिंग कर रहे हैं। उस जमाने पे कलर टीवी भी नहीं आया, इंटरकॉन्टिनेंटल लाइंस नहीं आया, मोबाइल नहीं आया, सैटेलाइट नहीं आया, इंटरनेट नहीं आया। सोचो वो लोग वो जमाने पे कैसे वो ये बढ़ते आया। So what is your vision for you today? Is that in your prayers you ask God? God is a very vital part of our program. If you take God away, there's nothing in the program. Your prayer is there, God. Your third step prayer is God. Everything. And from the fifth step, you are doing your program with God. Admitted to God, to myself, and the human being. पांचवा पैर से भगवान के साथ, ईश्वर के साथ बैठ के कर रहे। So, सुनने में बहुत अजीब लगेगा, हम आम लोग हैं, आम ही रहेंगे। ये कुछ आध्यात्मिक ये सीख ले तो कुछ हमको ये नहीं होता है। जितना घमंड दूर रख के, जितना हमने नम्रता से जी सकता है, उतना स्पिरिचुअल बोलते हैं बस। घमंडी आदमी उसका भी यूज नहीं है, बाकी लोग का भी नहीं। तो ये है दोस्तों, दिस इज व्हाट इज, जितना जहां तक मैं जानता हूं, और मैं जो लिख के प्रिपेयर नहीं करता हूं मैं, ताकि ईश्वर को प्रार्थना करके मैं चालू करता हूं जो बात करना है। तो कभी कभी मैं इधर उधर टैंजेंट से दूर जाके बात करता हूँ, कभी कभी माफी चाहता हूँ मैं, कि मतलब वो इसका उसका कुछ कनेक्शन होगा इसलिए बात किया होगा। और दोबारा आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी हु हैज कम टुडे, हु इज लिसनिंग टू दिस। गॉड ब्लेस यू विथ गुड सोब्राइटी, good life, health, wealth, prosperity, peace of mind. Because AA, if you're in AA and if you do the things, you will get this for free. That is a promise. I want to thank everybody who has listened today. Sudhir bhai, Rajesh bhai, sabko thank you, thank you, thank you. Thanks to the Pink City AA Online. God bless you guys. Thank you. Thank you, Raj bhai. Thank you very much